गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मेरा एक बहुत स्पेशल गेस्ट है विख्यात उपाध्याय, जो कि मेरा स्टूडेंट था आज से 3 साल पहले जब वो 7th स्टैंडर्ड में था। एक छोटा बच्चा, जी हाँ, आज वो 6 फीट का हो गया है। उसने 10th का बोर्ड दिया है और अभी 2-3 दिन पहले वो मेरे से मिलने आया था, क्योंकि उसकी नानी यहाँ पे रहती हैं। वो खुद गुड़गांव में रहता है, तो उसने मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करी, जो कि उसके एज ग्रुप में जब बच्चे अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो क्या करेंगे, तब उनको क्या क्या स्किल्स काम में आ सकती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने विख्यात को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तुम आना और इस पे अपन वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको विख्यात से मिलाती हूँ, जो आज 6 फीट का है और अपनी हेल्थ पे यानी फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देता है। हाय। तो ये विख्यात है। मैं अब इससे पूछूंगी कि ये क्या क्या सोचता है स्किल्स डेवलप करने के लिए, जो कि करियर में आगे बहुत यूज़फुल हो। विख्यात, आप सबको बताओ कि आपने जो उस दिन मेरे साथ डिस्कस किया था रिगार्डिंग जो बच्चे हैं आपकी एज के, उनको क्या करना चाहिए, क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जिससे कि उनका करियर बहुत अच्छा हो। तो आप कुछ शेयर करोगे? Well, so basically, what I'm about to say is targeting people from grade 6 to 10. इस रेंज में there are typically three types of people. One type जो academics पे बहुत फोकस करते हैं but then उनकी extra curriculars नहीं हो पाती. Then there's a type जो extra curriculars बहुत करती है and उनकी academics नहीं हो पाती. And then there's a third type who are struggling in academics as well as extracurricular. So if you're one of these three types, then you often wonder कि आप क्या कर सकते हो अपने आप को improve करने के लिए. And then there comes a time when you have to think about your college and the qualifications you need to get into a good college. तो इसके लिए बहुत लोगों के पास fixed mindsets रहते हैं. पर आजकल there are so many new opportunities for people like me, people like us who are in 10th, 9th, figuring out their colleges. So what you can do is at this age that you should develop a third language. अब third language में there's a world beyond French and Spanish and English. Yes, of course you have to have your English at your tips. पर उसके बाद there are countries like Japan. Japan is actually developing a lot and आजकल there's a lot of demand for Indians who can speak Japanese. And ऐसे ही अगर if you are an Indian, you know English and उसके बाद आप Japanese master कर लेते हो, उसके बाद you get so many good career options. Your demand in the market increases drastically. And along with Japan, there's this country Germany. Germany and Japan, they are progressing so fast that they'll leave US behind in a couple of years. So अगर आपको German आती है, अगर आपको Japanese आती है, and on top of that you have good education qualifications, तो उसके बाद I speak from experience, आपको global companies से offer मिलते हैं. But of course, there is a struggle for 3 to 4 years जो आपको करना पड़ता है. But yeah, it's just about 4 years. After that, your extracurriculars, whatever you have done, if you know a language, if you have any educational qualifications, if you have been a part of a club or social clubs, social work, this comes into play. So what I would recommend is कि academics के साथ आप extracurricular पे भी focus करो. And if you are struggling in academics, then it's not a problem. Marks aren't everything. It is the process that matters. अगर आप effort डालते हो उन marks को लेने के लिए, but even then नहीं आ पाते marks, it's really not a matter. What matters is कि आप effort डालते हो. And as long as you put the effort and you have a good extracurricular, you're all set. Yes, that's it. विख्यात, तुमने मेरे को एक चीज़ और बताई थी कि डिबेट्स वगैरह हैं, मतलब जिससे कि आपकी जो कन्वर्सेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि आप अपने आप मतलब डिबेट क्लब में अपने आप को आप डालिए, जिससे कि आपका कन्वर्सेशन अच्छा हो और आपके व्यू पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो, है ना। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे या कुछ भी बिजनेस करेंगे तो आपकी ये वाली स्किल बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपके व्यू पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप उन व्यू पॉइंट्स के लिए अपने आप को होल्ड कर सको। यानी कि अगर आप डिबेटिंग क्लब में जाते हो, इसके बारे में आप क्या बोल रहे थे उस दिन? अगर हम डिबेट क्लब की स्पेसिफिकली बात करें तो yes, debate clubs are a very good opportunity to increase and boost your confidence. And the way you speak, how you emphasize on your words, it plays a good part of a good role in your future career. But then again, debates aren't for everyone. कुछ लोगों का अपना चॉइस भी होता है, जैसे if someone is interested in gaming and उसको गेमिंग का करियर बनाना है and there's a club for gaming,
So of course he or she will take gaming clubs. But what I would recommend is कि there should be something that can boost your confidence, be it MUNs, be it debates, जिससे आपका जो एजुकेशन स्किल्स होते हैं वो डेवलप हो जाए इन द फ्यूचर. बिकॉज how you speak, the way you speak, how you sit, how you move your hands, it makes the first and the last impression on the people you're going to meet in the future. So इसके लिए yes, debate clubs are important, and not just for confidence. Debate clubs, they make your mind so creative. And then again, world is more than debate clubs. Similar things are like art clubs if you're good in art, and debate clubs if you're good in debates, MUN clubs if you're good in MUNs. But what the main point is, if you're good at something, don't leave it for the sake of it. आप करो उसको, pursue करो. And clubs are like a very good thing. Be it any social club, if you're doing something without any benefit to you, but you're helping someone, उससे बहुत ज़्यादा benefit होता है आपके career के लिए, and of course जिनकी आप help कर रहे हो उनके लिए भी. इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ विख्यात, आप जो कह रहे हो. एंड आई थिंक ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये एक पर्सन को बहुत ज़्यादा केपेबल बनाती हैं, जिससे कि वो वर्ल्ड के साथ प्रॉपर स्किल्स में रहता है, यानी कन्वर्सेशन स्किल्स में रहता है, और उसी से हमारा जॉब प्रोफाइल वगैरह इम्प्रूव होती है. और डिबेटिंग का एक पॉइंट मेरे को भी याद आया कि जब हम डिबेट्स करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि डिबेटिंग इज़ अ हेल्दी थिंग. कई लोग क्या करते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए सामने वाले से कभी कभी कुछ कहते हैं ना कि उनकी लड़ाई झगड़ा टाइप हो जाता है. तो डिबेटिंग से हम एक हेल्दी तरीके से अपना व्यू पॉइंट रखना और दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना सीखते हैं. विख्यात, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुमने टाइम निकाला, मेरे पास आए, और विख्यात मेरे लिए बहुत अच्छी गिफ्ट भी लाया है जो मैं सबको दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, ये विख्यात मेरे लिए गुड़गांव से लेके आया है, एंड आई एम रियली हैप्पी. ऑल्दो ज़रूरत नहीं थी, पर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स क्या कहना चाहिए, स्पेशल गिफ्ट होने वाली है, जिसको मैं हमेशा देखूंगी तो विख्यात को याद करूंगी. ऑल द बेस्ट विख्यात, थैंक्स फॉर शेयरिंग.